जी आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 6th चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टेस्टिंग। Suzanne came into the computer lab to take her final exam in Spanish. She sat down at a computer station, put on a headset, and clicked on exam and final. Our video began in the and saw a Mexican plaza as if she herself were walking towards the exit. A young man approached her and asked in Spanish as if she would like a tour guide. Susan responded by asking him also in Spanish how much he charged, and they agreed on a price for his services. The guy asked Susan what she would like first, and a number of options appeared on the screen. She thought that she would like to get a cold drink and clicked on the option. She saw herself walking down a narrow street, arriving at a liquido stand where she asked the women behind the counter for an orange drink. The women asked Susan a question which she didn't quite catch, so she clicked on a help button which gave her written on screen in Spanish. Susan replied that yes, she did want ice in her drink. Next, the guide appeared again on the screen and asked what Susan would do next. She clicked on street market and the video switched to an open air market with stalls selling clothing, CDs, videos, cameras, and other goods. As the exam continued, Susan found herself in a number of different situations, some of which she selected and some that were presented automatically. She had to use a variety of not only vocabulary and grammatical structures she had been studying in her Spanish class, but also the appropriate social gestures and politeness strategies for dealing with the different people and tasks she encountered. At one point, she asked as if she could visit the local cantina, but was told by the guide that this was a very traditional village and the women were not really welcome there. He suggested that they visit a cafe instead, where Susan was shown a menu and had to order lunch. When she was baffled by a particularly colloquial food term, she clicked on the help button again and got an English translation. Coming out of the cafe, Susan witnessed a traffic accident and was subsequently asked by a police officer to write a brief description of what she had seen using a word processor provided by the program. अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल है सुजन नाम की लड़की की कि जो अपना एग्जाम के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हुए इसका एग्जाम लिया जा रहा है। वो कंप्यूटर के थ्रू अपना एग्जाम दे रही है और कंप्यूटर के अंदर वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है, कल्चरल इंफॉर्मेशन, डिफरेंट कलोकियल इंफॉर्मेशन और डिफरेंट जो पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज हैं उनकी बेसिस पे उसको डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करना है और हैंडल करना है। जिस तरह जब कोई कोल्ड ड्रिंक शॉप पे जाती है, अपना कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है, उसको उस लैंग्वेज में जो उसकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना तो आता है, लेकिन उसके लिए अगर फर्दर कुछ और ऑप्शंस उसको जो शॉपकीपर है वो दे रहा है तो उसको उन ऑप्शंस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जिन चीज़ों की उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके लिए वो हेल्प बटन प्रेस करती है और उसकी रिटर्न फॉर्म में टारगेट लैंग्वेज रिटर्न टारगेट फॉर्म में टारगेट लैंग्वेज में वो देख लेती है, या अगर उसको हिंदी समझ नहीं आता है तो वो उसको उसका अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेशन सुन लेती है। और कैफे में भी इसी तरह होता है कि जिन ऑप्शंस का या जिन चीज़ों की लैंग्वेज का उसको समझ नहीं आती तो वो अपनी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट कर देती है, हेल्प का ऑप्शन यूज करते हैं।
ठीक है, ये कोई टेस्ट या एग्जाम इस तरह का नहीं है कि आपके पास रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल है और आपको सिर्फ आंसर्स लिखनी है, बल्कि इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने टेस्ट को ज़्यादा ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक बना सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में आप किस तरह आपको बिहेव करना है और किस तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो एक एक्सीडेंट देख रही है तो उसको पुलिस ऑफिसर उससे डिस्क्रिप्शन एक मांग लेता है कि क्या उसने देखा इस एक्सीडेंट। All of our spoken and written responses were recorded and scored by a computer program that had been trained to recognize the great variety of possible responses to each situation and rate each test taken vocabulary, morphology, syntax, and social appropriacy, as well as pronunciation and fluency for the spoken responses and style and organization and development of the written response. जनाब यहाँ पे उसका सिर्फ ग्रामर और उसकी अरेंजमेंट की टेस्ट नहीं हो रही है, और सिर्फ वोकैबुलरी चेक नहीं होती है, बल्कि उसकी सोशल अप्रोप्रिएसी, उसका अरेंजमेंट ऑफ मैसेज, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके फोनेटिक, उसका मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, उसका बैकग्राउंड, उसका कोलोकियल इंफॉर्मेशन और हर चीज़ का स्टाइल सब और फ्लुएंसी भी चेक। Strike Susan asked for a special Spanish transcription or an English translation. The computer deducted a bit from her overall score. जैसे ही कोई ट्रांसक्रिप्ट मांगती है, रिटन फॉर्म में स्पेनिश मांगती है कि जो सिलेबस किया गया है उसको वर्बल फॉर्म में, उसको स्पोकन फॉर्म में समझ नहीं आया है तो उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट मांगती है या इंग्लिश ट्रांसलेशन मांगती है, तो कंप्यूटर जो उसकी स्कोरिंग ऑटोमेटिक कर रहा है उसके ओवरऑल स्कोर में से उतने मार्क्स डिडक्ट कर देता है जितने की उसके हेल्प के चलते minus हो जाते हैं। When she had completed the entire examination, Susan immediately got a printed score report that gave her not only her previous sub-scores and her total score, but also narrative feedback on her strengths and weaknesses in Spanish and suggestions for what she might do to communicative abilities. अच्छा, जैसे ही उसका एंटायर एग्जाम खत्म होता है तो उसको प्रिंटेड फॉर्म में उसका स्कोर रिपोर्ट मिल जाता है, जिसमें ना सिर्फ उसके कोर्स हर एक एलिमेंट के, हर एक चंक की, हर एक आइटम के बताए होते हैं, बल्कि साथ ही फीडबैक भी दिया होता है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में स्पेनिश लैंग्वेज में, उसकी टारगेट लैंग्वेज में, जिसमें उसको ये बताया जाता है कि क्या उसकी एबिलिटीज हैं और कौन सी चीज़ों को वो इम्प्रूव कर सकती है, कौन सी उसकी वीकनेसेस और वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है। This extended example is no doubt pretty much science fiction at the present times, but perhaps not so much in the future as is entirely far-fetched. The Mexican village guide scenario was pioneered in the early 1980s at Brigham Young University using the advanced technology of the interactive video disc. An automated scoring technology for spoken language was developed in the 1990s at Ordinate Corporation as Food and is now used in a suite of automated language assessment, including a Spanish speaking test produced by Pearson Knowledge Technologies under the name of Versant. Similarly, the automated scoring of writing has been in development since the early to mid 1990s, an example of which is e-rater, an essay scoring engine that is based on an online writing evaluation service criterion produced by the Educational Testing Service. ये अभी आपको सिर्फ वो ख्वाब की बातें लगे, लेकिन फ्यूचर में जो है वो इस किस्म की चीज़ें आने वाली हैं आपकी टेस्टिंग के लिए और टेस्ट स्कोरिंग के लिए, और बहुत सी चीज़ें जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें फोन पैस है, जिसमें वर्सेंट है और जिसमें ई रेटर है, जिसमें ऑटोमेटिक रेटिंग हो जाती है या स्कोरिंग हो जाती है आपके एलिमेंट्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पे हमें बताई हैं आपकी। इश्यूज क्या है टेक्नोलॉजी यूज करने के सिलसिले में लैंग्वेज टेस्टिंग के? जी, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी।
अभी तक हमने एडवांटेजेस की बात की या इसके बेनिफिट्स की बात की कि किस तरह हमें कोई भी टेस्ट अगर कंडक्ट करवाना है तो अगर हम बजाय रिटन फॉर्म में वो सारी डायरेक्शंस देकर और स्टूडेंट को कहें कि इन क्वेश्चंस को आंसर कर दे, तो उसकी बजाय अगर हम उसको सिचुएशंस वैसी दें, वो एक ऐसे जैसे डिफरेंट गेम्स में होता है। एक मिनट, जैसे डिफरेंट गेम्स में होता है कि एक सिचुएशन से निकल के एक सिचुएशन को हैंडल करना होता है, उसको फेस करना होता है, और उसके बाद दूसरी सिचुएशन में आप एंटर हो जाते हैं एज अ प्लेयर। बिल्कुल इसी तरह आपका टेस्ट भी आपसे ऐसे ही करवाया जाए कि आपको जिस सिचुएशन में हमें आपसे रिस्पॉन्सेज चाहिए आपकी टारगेट लैंग्वेज में, उसी सिचुएशन को फेस करवाया जाए आपको, और आप उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखें अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, और सारी जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो बैकग्राउंड है, चाहे वो कोलोकियल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वोकैबलरी है, चाहे वो सिंटैक्स है, चाहे वो फोनेटिक्स है, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन है, और चाहे वो आपके पास मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज है। ठीक है जी। तो इस तरह का अभी तक हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है तो नहीं, लेकिन ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि जिससे डिफरेंट सिचुएशंस को स्टूडेंट्स जो हैं वो हैंडल करना सीखें और उनकी बेसिस पे अपना आउटपुट दें, और उन्हीं की बेसिस पे उनका मार्क्स का जो है वो कैलकुलेशन हो पाए। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज टेस्टिंग हैज़ बीन विद अस फॉर मैनी ईयर्स. One could argue, I suppose, that allowing test takers to use pencils with erasers with a technological innovation at one time in language testing, overhead projectors, slide and film projectors, audio records, and video players were once cutting edge technologies that were incorporated into language assessment at one time or another. Computers were introduced into assessment as early as 1935 when IBM Corporation released a test scoring machine that could accurately score selected response test 10 times faster than humans. अच्छा जी, वो कह रहा है कि एक दौर था कि जब टेस्टिंग में पेंसिल शार्पनर इरेजर भी जो है वो टेक्नोलॉजीज थी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उससे पहले तक इरेजर का अगर कॉन्सेप्ट नहीं था या पेंसिल का अगर कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये भी एक इनोवेशन थी, ये भी एक नई इन्वेंशन थी टेक्नोलॉजी में कि जो कि टेस्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाई गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मज़ीद टेक्नोलॉजी ने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स और स्लाइड्स और फिल्म प्रोजेक्टर्स और ऑडियो रिकॉर्डर्स और वीडियो प्लेयर्स, इस तरह की चीज़ें आई कि जो इससे पहले तक टेस्टिंग के डिपार्टमेंट में कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से भी टेस्ट हो सकता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स पे डिस्प्ले करके वीडियो प्लेयर्स के साथ या ऑडियो रिकॉर्डर्स के साथ। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो 2006 में जो है वो टेस्ट स्कोरिंग मशीन इंट्रोड्यूस करवाई गई। टेस्ट स्कोरिंग मशीन जो है वो मैनुअल स्कोरिंग से या इंसान जो स्कोरिंग करते हैं उससे 10 टाइम्स फास्टर जो है वो रिज़ल्ट देती है। और कंप्यूटर्स और इंटरनेट जो हैं वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए टेस्टिंग के एरिया में कि उनके थ्रू टेस्ट लिए जा सकें और टेस्ट को स्कोरिंग पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो जिस तरह से ये चीज़ें हमारे पास डेवलप होती आई हैं और शामिल होती आई हैं टेस्टिंग के एरिया में, उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है क्योंकि गेम्स की तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए कि जिसके थ्रू हम टेस्ट कंडक्ट करवा सकें। Computers and internet are now used to develop, distribute, administer, and score language tests and deliver test results. Such technologies add podcasting, video podcasting, or broadcasting, and voice over internet protocols are being explored for their potential for language testing, teaching, and assessment, as are computer-based simulated environments or virtual worlds such as Second Life. The question for language test developers and users is not should these technologies be used for language testing? Should these technologies be used for language testing or not? They are being used and will continue to be. Rather, the question we need to ask include these.
अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ये सारी टेक्नोलॉजीज जैसे पॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल्स और वॉडकास्टिंग या वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं, ये वाली टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ में आपके पास इस्तेमाल हो रही हैं टेस्टिंग के लिए और टेस्ट स्कोरिंग के लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए या नहीं, बल्कि हमारे क्वेश्चंस ये हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का हमारे लैंग्वेज असेसमेंट पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं। What are the effects of the use of technology in language assessment on test taker attitudes such as anxiety and motivation? अच्छा जी, इन टेक्नोलॉजीज को लैंग्वेज असेसमेंट के लिए यूज़ करने के लिए हमारे जो टेस्ट टेकर्स के एटीट्यूड्स पे इनका असर क्या है? एंग्जाइटी से रिलीफ देने में ये कुछ हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजीज़ या नहीं, और मोटिवेट करने के लिए ये यूटिलाइज हो सकती हैं या कोई हेल्प करती हैं या नहीं, या इसका उल्टा इफेक्ट है कि ये ज़्यादा एंग्जाइटी जो है वो कॉज कर देती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ये कोई मोटिवेशन जो है वो करने में कामयाब नहीं है। हाउ डज लैंग्वेज परफॉर्मेंस डिफर विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज? लैंग्वेज की परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ किस तरह डिफर करती है? How does the use of technology affect the definition of the language ability construct we are attempting to measure? किस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के साथ लैंग्वेज एबिलिटी कंस्ट्रक्ट पे जो है वो असर होता है या उस पर फ़र्क पड़ता है? तो लैंग्वेज परफॉर्मेंस जो है वो डिफ़र इस तरह करेगी कि जैसे हमने पीछे जो एग्जांपल पढ़ी है सुजैन वाली, तो उसमें अगर हम ऐसे ही एक पीस ऑफ पेपर पे उसके डिफरेंट सिचुएशंस लिख कर दें और रिटन फॉर्म में उससे क्वेश्चंस पूछ लें, तो उसको उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो उतना नहीं इम्प्रूव करेगा, या वो उतना ज़्यादा जो है वो एक्टिवली आंसर नहीं कर पाएगी जितना कि वो एक सिचुएशन को एक से आगे सिचुएशन फेस करते करते जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो जूस ऑर्डर कर रही है या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रही है, तो उसके लिए वो उसका इंटरेस्ट भी वहाँ पर डेवलप हो रहा है कि अब वो आगे से आगे क्या एक्सप्लोर करना चाहती है एक प्रॉपर सिटी के अंदर या एरिया के अंदर वो मौजूद है, बजाय इसकी कि आप उसको पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दें, तो वो उसके लिए ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज करेगा कि उसको एक सिचुएशन सोचना पड़ेगी अपने माइंड में, उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट अपने माइंड में सोचना पड़ेगा, और उसका जो उस वक्त पे आंसर होगा वो उतना ज़्यादा वैलिड या उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा जितना कि वो एक सिचुएशन को फेस करते हुए, सिचुएशन से गुजरते हुए उसको रिप्लाई आंसर कर रही है। How does technology affect the nature of assessment tasks that can be developed? नेचर ऑफ असेसमेंट टास्क को किस तरह से टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है, और लिमिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है स्कोरिंग के लिए, और ऑटोमेटेड स्कोरिंग जो है वो ह्यूमन स्कोरिंग से किस तरह डिफरेंट है? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको आगे जो है हर एक टॉपिक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ट टेकर एटीट्यूड्स को कैसे अफेक्ट करती है? We all know that, generally speaking, younger people are more technologically adept than those of a certain age, but this tendency is far from universal, and many test takers find computer assisted language testing confused and unwidely, not to mention communicatively unnatural. Anxiety or sometimes anger can affect different individuals differently. In some, it produces substandards performance different, marked by confusion and uncertainty, while in others, it may help the focus and produce better than usual response. In either case, the problem is we don't know how anxiety brought about by computer unfamiliarity affects test performance in individual test takers, and thus we don't know how to interpret their performance appropriately. टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ट टेकर एटीट्यूड्स को अफेक्ट करती है कि कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं वो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो परफॉर्मेंसेस देना पसंद करते हैं, लेकिन जो एक ख़ास एज में आके टेक्नोलॉजी के साथ उतनी रग़बत नहीं रहती, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इस किस्म के गैजेट्स को यूज़ करने का, तो ये जो है एक यंग एज से ऊपर की एज में या मिडिल एज में ये बड़ा अननेचुरल हो जाता है। तो कुछ लोगों को एंग्जाइटी ऐसी होती है कि जैसे हमने सुजैन वाली एग्जांपल में बात की कि अगर वो सिचुएशंस जिनको फेस करके उनके बारे में रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उनकी बजाय अगर उसके पास पेपर पे रिटर्न सिचुएशंस होती हैं और उनको सोचना पड़ता, इमेजिन करना पड़ता है, पूरा खाका बनाना पड़ता, तो वो उसके लिए ज़्यादा एंग्जाइटी रिडन होता। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी एंग्जाइटी काज कर सकती है टेक्नोलॉजी में
यूज़ करते हुए कि कुछ चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ रहा, कुछ चीज़ों को सही से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, तो ये चीज़ भी एंग्जाइटी कॉज कर सकती है जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ ऑपरेट करना नहीं आ रही, किसी चीज़ को प्रॉपर से टाइप कहाँ से करना है, ऑडियो रिस्पॉन्स कहाँ से देना है, तो कौन सा बटन प्रेस करना है या कौन सा टैप प्रेस करना है, या वीडियो रिस्पॉन्स देना है तो कहाँ से करना है, कुछ शेयर करना है तो कहाँ से कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एंग्जाइटी कॉज कर सकती है। This is an aspect of technology in assessment that is diminishing with time as a greater and greater proportion of the test taking population is becoming adept as using computers. ये चीज़ जो है टेक्नोलॉजी का, ये वाला जो एस्पेक्ट है वो कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है जैसे जैसे जो है दुनिया जो है अवेयर हो रही है डिफरेंट गैजेट्स के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो अवेयर हो रही है और उसको अडॉप्ट कर रही है और अपनी लाइफ में चेंजेस ला रही है, तो कंप्यूटर्स यूज़ करते हुए। तो ये चीज़, ये वाला फैक्टर जो है एंग्जाइटी जो कॉज करने वाला है टेक्नोलॉजी का यूज़ ना आने पे, वो वाला फैक्टर कम हो रहा है. There is no doubt will always be some for whom the computer is a mystery, however, and must be sensitive to their needs as we design and use language tests. For example, when the computer-based TEFL was introduced in the 1990s, it came with a tutorial providing practice as manipulating the computer technology necessary to complete the test. This tutorial required of all the test takers, regardless of their familiarity with computers, added between 20 and 30 minutes to overall testing time, but was found to erase any differences in test performance between computer familiar and computer unfamiliar candidates. वो कहते हैं कि जो जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोई भी नया प्रोग्राम या नया सॉफ्टवेयर या नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको शुरू में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, उसको ऑपरेट करना। तो जैसे वो कह रहे हैं जी टेफल आया था 1990s में, तो उस वक्त लोगों के लिए बड़ा ही नई चीज़ थी ये कि कंप्यूटर के साथ या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए किस तरह से वो लोग अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो उन्होंने साथ एक ट्यूटोरियल दिया था जिसको कि सब लोग देख सकते थे, सब लोग उसकी बेसिस पे अंडरस्टैंड कर सकते थे कि किस तरह से करना है, चाहे वो उनके कंप्यूटर से अवेयरनेस थी या कंप्यूटर से अवेयरनेस नहीं थी, चाहे वो फेमिलियर थे कंप्यूटर्स के साथ चाहे नहीं थे। और ये 20 to 30 मिनट्स का जो है ट्यूटोरियल था जिसमें सारी चीज़ें आपको समझाई गई थी और उससे सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकते थे। तो कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप उसको सब लोगों के लिए अच्छे तरीके से कोई कॉम्प्रिहेंसिव सा कोई उस ट्यूटोरियल या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो है वो पहले करवा सकते हैं, ताकि जो लोग भी उसको ऑपरेट करें, जो लोग भी टेस्ट करें उसको यूज़ करते हुए, तो उन लोगों को परेशानी ना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से इससे पहले अवेयर हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की अलग से भी वाकिफ़ नहीं है. Language performance and different media. There is a little question that reading, for example, is a different experience when done on a computer screen as opposed to a printed page. We scroll or click a page down to key to navigate through an electronic text rather than turn pages in a book. We use our fingers or a slip of paper to mark our place in a book, not too easily done on a computer. We can underline important parts of a physical text while we somewhat more laboriously highlight electronic text. It is more difficult to keep relationship among parts of longer electronic text in our mind than the physical text. Significantly, electronic text can and often does contain hyperlinks to multiple sources of information so that reading becomes a more dynamic, interactive process online than it can be in a printed text. यहाँ पे जी लैंग्वेज परफॉर्मेंस किस तरह अफेक्ट होती है मीडिया चेंज करने के साथ या मीडियम चेंज करने के साथ, तो उसमें वो एग्जांपल ले रहा है टेक्स्ट रीडिंग की या बुक रीडिंग की, एक स्क्रीन पे और एक फिजिकल बुक की शक्ल में। तो जब आप कोई भी फिजिकल बुक हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं तो वो आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब आप बुक पे तो आप पेज हाथ से आगे पीछे कर सकते हैं, जबकि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, वहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं या नेविगेशन की यूज़ करते हैं, ऊपर नीचे वाले कर्सर्स यूज़ करते हैं आप अपने फिंगर्स के साथ और ऊपर नीचे पेजेस पे मूव कर सकते हैं। एक मिनट,
ठीक है। तो जो आपके पास फिजिकल बुक है उसमें आप अंडरलाइन करते हैं पेन के साथ, पेंसिल के साथ, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीका उसमें हो जाता है कि आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो जो फिजिकल टेक्स्ट है उसमें आपको जो मीनिंग्स नहीं पता जिन वर्ड्स के, या जिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, उनका आपको बैकग्राउंड नहीं पता, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप एक क्लिक के साथ ही आप अपने गूगल में या आप अपने सर्च ब्राउज़र में कहीं भी जाके किसी भी ब्राउज़र के साथ उसके मीनिंग्स, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड, आप सब कुछ जो है वो आपको एक क्लिक के साथ ही आपके सामने ओपन हो जाता है। तो वो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए एज़ कम्पेयर टू फिजिकल रीडिंग, जब आप बुक हाथ में पकड़ के रीडिंग कर रहे होते हैं। Any change in the input or response technology in a language test can potentially affect the ways we process language, whether we are assessing reading, listening, writing, or speaking, or a combination of those. तो इनपुट और रिस्पॉन्स में कोई भी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है, सारी प्रोसेसिंग में चेंज आता है, चाहे हम रीडिंग कर रहे हों, चाहे लिसनिंग कर रहे हों, चाहे राइटिंग कर रहे हों, चाहे स्पीकिंग कर रहे हों, चाहे इनमें से कॉम्बिनेशन हो राइटिंग और रीडिंग का या लिसनिंग और स्पीकिंग का. A question we need to ask in each case therefore is how these differences affect test performance and more importantly our interpretations of test performance. तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि किस तरह हमें अफेक्ट कर रही है ये टेक्नोलॉजी, बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे टेस्ट रिजल्ट्स को किस तरह से ये टेक्नोलॉजी अफेक्ट करेगी अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए या कंप्यूटर यूज़ करते हुए टेस्ट ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल टेस्ट, और किस तरह से हमारे रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करेगी. Technology and the construct to be measured. In the light of the point made in the previous section, we need to consider how we will define the construct we wish to measure in language test, taking into account the technology being used to deliver the test and collect responses. In their book on the use of computers in language assessment, Chappell and Douglas defined language ability in recognition of the joint role that language and technology play in the communication. The ability to select and deploy appropriate language through the technologies that are appropriate for a situation. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करेंगे अगर हम एक लैंग्वेज टेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए और टेक्नोलॉजीज़ की बेसिस पे ही हम रिस्पॉन्सेज अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे. तो चैपल एंड डगलस ने जो है वो 2006 में डिफ़ाइन किया था लैंग्वेज एबिलिटी को कि एबिलिटी लैंग्वेज एबिलिटी की ऐसी एबिलिटी है कि जो डिफरेंट लैंग्वेज रिस्पॉन्सेज को या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज को टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो सिलेक्ट और डिप्लॉय करे, उनको प्रॉपर प्लेस पे जो है वो रिस्पॉन्ड करे या प्रॉपर प्लेस पे रखे, या उनको प्रॉपर कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे बैकग्राउंड और अप्रोप्रिएसी की बेसिस पे उनको जो है वो पुट करे. तो ये उसको ये कह रहा है लैंग्वेज एबिलिटी, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अप्रोप्रिएट सिचुएशन में जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को सिलेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना. ठीक है. If a particular technology is a relevant aspect of language use situation, then a language user who is not competent in using that technology cannot be considered competent in communication in that context. तो अगर एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए, एक सिचुएशन को टेस्ट के अंदर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए, तो अगर एक लैंग्वेज यूज़र वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने में कॉम्पिटेंट नहीं है तो हम उसको यही समझेंगे कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में या उस सिचुएशन में कम्युनिकेट करने के लिए या उस सिचुएशन में लैंग्वेज के यूज़ करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है. ठीक है जी. इन वन सिचुएशन सेंडिंग, यानी अगर आप उस सिचुएशन जो आपको सिचुएशन गिवन है उसके अंदर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके अंदर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं पता, तो हम यही समझेंगे कि आप वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करने में नाकाम हैं. ठीक है जी. इन वन सिचुएशन सेंडिंग एन ईमेल message may be the appropriate way to communicate, while in another a telephone call might be more suitable.
and in yet another situation only a face-to-face conversation will do. In our language test, therefore, we need to consider what technologies, and these include paper and pencil as well as computers and the internet, are most appropriate for the situations most relevant to the test takers and school user, and for the purposes the test is intended to fulfill. जनाब वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। किसी सिचुएशन में मैसेज ईमेल के थ्रू करना होता है, किसी में मैसेज करना होता है, किसी में फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, किसी में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। तो वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है जिसमें हम आपसे रिस्पांस मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आ रहा, आपको रिस्पॉन्ड करना तो आता है, आपको उसका आंसर पता है, आपको कम्युनिकेट करना आता है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आप उसमें फेल हैं। In our language test, therefore, we need to consider that what technology is, and these include paper and pencil as well as computers and the internet, are most appropriate for the situations more relevant to the test takers and school users. अच्छा जी, अब हमने अपने लैंग्वेज टेस्ट में हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा, या हमें ये सोचना पड़ेगा, या हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हैं या हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। अगर हम देहात के एनवायरनमेंट में जाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक पसमानदा अगर इलाका है, वहाँ पे अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर्स या ऑडियो वीडियो रिस्पॉन्सेज मांगेंगे तो डेफिनेटली अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये हमने अपने कॉन्टेक्स्ट की, अपने बैकग्राउंड और अपने एरिया, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, पेंसिल शार्पनर रबर वाली, या ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वाली, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वाली, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वाली, या कंप्यूटर असिस्टेड कोई भी टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो हम खुद अपने कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे, अपने सिचुएशन, अपने एनवायरनमेंट की बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़, जैसे जब ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एक टैब वाला सिस्टम आया था, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स, अब गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर ये होता है, जो देहात के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो तबका होता है ना, ज़्यादा पसमानदा तबका, वही अपने बच्चों को स्कूल्स में, या जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पसमानदा तबके के, या जो झुग्गियों वाले जो लोग होते हैं, या जो दूसरा घर में काम करते हैं, वो ही अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। और वो बच्चे, उनको तो सही से हाथ मुंह पोंछने का भी नहीं पता होता कि अगर आप उनको टैब्स के साथ काम करवाएंगे तो बहुत सारी टीचर जो मेरी एक दो टीचर जो मेरी स्टूडेंट भी थी, उन्होंने ये वो बताती थी आके कि जब बच्चे को MCQs करने होते हैं टैब्स पे, तो वो ये करते हैं कि अगर उन्हें पता हो कि इसका ऑप्शन बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है ऑप्शन, तो वो बी को एक दफ़ा टैप नहीं करते, 2-3 दफ़ा टैप कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक टाइम पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, तो एक क्वेश्चन का जब बी सेलेक्ट हो जाता है, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाता है और दूसरे का भी बी सेलेक्ट हो जाता है और तीसरे का भी बी। इस तरह कई दफ़ा टैप करने पे जो है वो काफ़ी सारे आंसर जो हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है जी। Appropriate technologies for assessing the language abilities of sequential trainees, for example, might include the telephone, pen and notepad, word processor, email and fax for university students, and assessment of language ability for academic studies might involve not only word processor but also print media, pen and notebook, email, the internet and podcasts. These differences in technologies need to be reflected in the definition of the construct and consequently in the interpretations we make of the test performance. जनाब वो कह रहा है कि स्कूल्स में जो है वो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, कॉलेज में जो है कॉलेजेस में या वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हम असेसमेंट के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, लाइक नोटपैड, ईमेल, इंटरनेट, पॉडकास्ट। और जो आपके पास क्रेडेंशियल ट्रेनीज़ हैं उनके लिए डेफिनेटली टेलीफोन, पेन, नोटपैड। तो ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे, आपके कॉन्टेक्स्ट पे, आपके एनवायरनमेंट पे। सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर आप टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो डिफरेंस है टेक्नोलॉजीज़ का वो आपके डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट में है कि, और उसकी बेसिस पे जो हम इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं उसमें है कि हमने कौन से जो एनवायरनमेंट में या कौन से लेवल पे हम कौन सी एबिलिटी और किस बेसिस पे हम लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी एंड असेसमेंट टास्क।